Very good morning, students. So today in 10th class, chemistry in everyday life, and today we have got a very important topic, and topic name is Bronsted-Lowry concepts of acids and bases. ये Bronsted and Lowry, this Bronsted and Lowry, actually Bronsted and Lowry, here two different chemists are there from the different countries, but both are the chemists. At the same time, together they proposed a theory regarding the concept of acids and bases. After the Arrhenians, second theory, this is the second theory, because Arrhenius said that that substance, acids are those substances which produce hydrogen, H plus ions or hydronium ion in the aqueous solution. And in case of the bases, he said, the bases are those substances which produce OH minus ion, hydroxide ion in the aqueous solution. But students, that theory was not enough. That theory couldn't satisfy. After that, these two chemists, they came forward. This your N. Bronsted and M. Lowry, and they gave the same statement, they gave the same theory, they gave the same concept regarding the acids and bases. Actually, they told about only specially about the protic acid. Protic acid means the acid in which hydrogen ion contains. So they told about they said about the protic acid, and they gave the idea of conjugate base and conjugate acid. Conjugate acid and conjugate base. This is about the conjugate acid and conjugate base. You can say that acid conjugate base pair or base conjugative acid pair. It was in pair. So according to this theory, what was the main statement in this theory? According to them, acids are proton donors. Acids are proton donor. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं. So proton donor substances are known as the acid. उन्होंने एसिड को ऐसे डिफाइन किया कि एसिड्स आर दो substances which donate the proton. Means proton donor substances are known as the acid. And in case of bases, they said that bases are proton acceptor. Bases are proton acceptor. Acceptor means they have the ability to accept the proton. So here two baseline were there. First is that acids are proton donor, and second is the bases are proton acceptor. It means प्रोटॉन डोनेट करने वाले सारे सब्सटेंसेस है वो एसिड है, और प्रोटॉन रिसीव करने वाले
प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस है वो सारे बेसिस है। ये था मेन कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स हैव द एग्जांपल। अपने एक एग्जांपल लेते हैं एंड थ्रू द एग्जांपल यू विल सी दैट हाउ दिस थ्योरी was explained properly. So first of all we take one acid and one base. Okay students, तो सबसे पहले मैं एक एसिड लेता हूं दैट इज ए और बेस को मैं करता हूं बी से रिप्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे एक ए है और एक बी है। ए को मैं विद एच ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने एच लेना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं एच लूंगा। ये H क्या है? एक्चुअली ये एसिड है बट ये प्रोटिक एसिड है, ये हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है। ऐसे एसिड हमें लेना है जिसमें हाइड्रोजन आयन तो हो ही हो, दैट्स व्हाई इट इज HA। तो HA क्या है? ये प्रोटिक एसिड है। तो यहां मैंने एसिड लिया है बट आई विल नॉट राइट प्रोटिक एसिड, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको समझाने के लिए मैंने H का मतलब बताया है कि H क्या है। H ये प्रोटिक वर्ड है और इसको हम H से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है HA। और स्टूडेंट्स यहाँ पे B जो है आपका वो है बेस। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस के बीच में। एसिड आपका प्रोटिक एसिड है, बेस आपका सिंपल है, कोई भी बेस ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और खास, यहां पे अपन वाटर भी ले सकते हैं। वी कैन टेक वाटर, वाटर कैन बी टेकन, वाटर कैन बी टेकन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग, एज एसिड। वाटर को हम एसिड के रूप में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और स्टूडेंट्स इसको अगर मैं आयोनाइज करूं, इसका डिसोशिएट करूं, तो मेरे पास ये आता है HOH। तो यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे OH माइनस है। तो ये H क्या है? H प्रोटॉन है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या है? ये प्रोटॉन डोनर है। यहाँ पे ये एसिड का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स दिस एसिड H2O इट कैन बी टेकन एज बेसिस ऑल्सो। H2O कैन बी H2O is also a base। ये बेस भी हो सकता है, H and OH माइनस। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन रिसीव भी कर सकता है। सो वाटर act as acid as well as base. Why? Because of its amphoteric, because of its amphoteric nature। स्टूडेंट्स वाटर की जो नेचर होती है वो एम्फोटेरिक होता है, मीन्स इट कैन बिहेव as acid or it also can behave as a base। ये बेस के रूप में भी बिहेव कर सकता है और ये एसिड के रूप में भी बिहेव कर सकता है। दैट्स वाई वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। So this thing you must know it. Is that clear students? चलिए, no problem. Now next is, I was telling about the reaction was here A and here I have taken plus B. Here I join HA.
यहां पे स्टूडेंट्स H और यहां पे A है, ठीक है स्टूडेंट्स। और A क्या है? ये कोई मेटल होगा, वॉट एवर इट इज। HA एसिड है। आपको समझना है कि HA एक एसिड है। कौन से टाइप का एसिड है? प्रोटिक टाइप का एसिड है। और B आपका बेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पे H क्या करेगा? H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन A को डोनेट कर देगा। और डोनेट करते ही S पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा स्टूडेंट्स, और A पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने रिसीव कर लिया, H ने डोनेट कर दिया। ये जो आपका H जो प्लस है, अब स्टूडेंट्स यहां से रिमूव हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा किसके साथ? बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। इट मीन्स यू कैन राइट, पहले आप H प्लस लिख दो और फिर आप B लिख दो, या यू राइट B पहले एड H प्लस बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम आई एम राइटिंग। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने B लिखा और H ये B के साथ यहां पे कंबाइंड हो गया है। अब ये A नेगेटिव है स्टूडेंट्स, यहां पे आपका A नेगेटिव आ गया। यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। यहां पे एसिड था क्या? HA। अब ये स्टूडेंट्स आपका जो A है माइनस, ये अब चेंज हो चुका है और इसका नेम होगा कॉन्जुगेट बेस। ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। और स्टूडेंट्स पहले B बेस था, आफ्टर रिसीविंग द प्रोटॉन अब स्टूडेंट्स ये बन गया है आपका कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, ये जो HA था, क्या था? HA, इसका पेयर बन रहा है इस एसिड का, इस कॉन्जुगेटिव बेस के साथ एक पेयर है। तो यहां पे मैं लिखता हूं माइनस HA माइनस A। ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? ये पहले क्या रखा है? HA। ये क्या था? एसिड था। तो इसको मैं लिखूंगा एसिड। चलो भाई लिख दिया एसिड, और बीच में वर्ड डाल लूंगा कॉन्जुगेट। क्या डाल लूंगा? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट। और फिर क्या है? ये क्या है? ये आपका बेस है, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर है। ये इसको बोलूंगा मैं एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। दिस वाज एसिड, ये तो एसिड ही है, और ए क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। तो ये हो गया एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे स्टूडेंट्स मैं उठाता हूं, यहां पे ये जो B है और B का मैं करता हूं BH के साथ, BH प्लस, BH प्लस। स्टूडेंट्स ये B क्या है? B था आपका बेस। क्या था B? बेस था, तो मैंने लिखा बेस। फिर ये BH प्लस क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड है। सो बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर।
ये हो गया आपका बेस conjugate acid pair. So by this example, almost the things we have understood. Next, I am taking another example, okay, so that you can understand more conveniently. चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं हम, ठीक है, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहां पे मैंने लिया H2O. क्या लिया स्टूडेंट्स? H2O लिया. व्हाट इज दिस H2O? अब ये एसिड है या बेस है मुझे पता नहीं है. और यहां मैंने दूसरा जो लिया है वो मैंने लिया है NH3 अमोनिया. अब NH3 से आपको पता चल गया कि भाई अमोनिया तो बेस है, तो चलिए अमोनिया को मैं बेस लिख देता हूं. तो यहां पे जो वाटर है ये बेटा एसिड है. वाटर यहां पे क्या है? एसिड. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट वाटर कैन प्ले द रोल फॉर द एसिड एज वेल एज बेस. तो हमारे पास बेस तो NH3 ऑलरेडी है और यहां पे H2O क्या है? वाटर है, लेकिन ये अब ये एसिड है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एसिड भी आ गया और बेस भी आ गया. इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, इस H2O को हम एक इजी वे में लिख देते हैं जिसे आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, सेट हो जाए. तो मैं इसको लिख देता हूं H और स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया OH माइनस. दिस थिंग यू नो, यू आर इन 10th क्लास, कोई दिक्कत नहीं है 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए. अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से एक H प्लस आयन, ये क्या होगा? एक H प्लस आयन जो है चलिए ये एक H प्लस आयन ये डोनेट हो जाएगा और ऐड कहां हो जाएगा? इस बेस में. ये इसको रिसीव कर लेगा. तो स्टूडेंट्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहां पे पहले NH3 था अमोनिया और इसने एक हाइड्रोजन आयन, एक प्रोटियम रिसीव कर लिया. सो स्टूडेंट्स NH3 की जगह NH4 आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ये अमोनिया नहीं है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया अमोनियम आयन. ये हो गया आपका अमोनियम आयन. क्या हो गया स्टूडेंट्स? अमोनियम आयन हो गया. और स्टूडेंट्स अब ये बेस नहीं रहा है, ये आपका बन गया कॉन्जुगेट एसिड. क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया. और स्टूडेंट्स इस OH की बात करूं तो उस OH को मैं कहां ले जाऊंगा? लास्ट में लिखूंगा OH माइनस. और स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कॉन्जुगेट बेस हो गया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, आई राइट, यहां पे क्या था? H2O था और इसका जो पेयरिंग हो रही है इस H2O की, क्या हो रही है इसकी? H2O की जो पेयरिंग हो रही है किसके साथ हो रही है? इसकी OH के साथ हो रही है. ये एक पेयर है स्टूडेंट्स. पहले H2O क्या था? एसिड था. तो आप लिखोगे एसिड, फिर आप लिखोगे कॉन्जुगेट,
एसिड कॉन्जुगेट, और ये भाई साहब क्या है, ये बेस है। तो हो गया एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए आप यहां से बात करते हैं। यहां पे NH3 है स्टूडेंट्स, और इसको पेयर करते हैं NH4 प्लस के साथ। तो स्टूडेंट्स NH3 क्या था, ये बेस था। इससे क्या बना, इससे बन गया कॉन्जुगेट एसिड, और ये पेयर में है स्टूडेंट्स, इसलिए हो गया पेयर। तो बाय दिस एग्जांपल आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इस एग्जांपल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, ओके। आफ्टर दैट दिस कंसेप्ट विल गेट ओवर। ओके स्टूडेंट्स, दिस टाइम आई एम टेकिंग HCl एसिड टेकिंग। ये स्टूडेंट मैंने एसिड ले लिया HCl। ये तो पता ही आपको क्या है, ये HCl है और एक्वियस सॉल्यूशन में है ये। और यहां पे मैं लिख देता हूं एसिड। बिल्कुल HCl एसिड है, कोई डाउट नहीं है। और यहां पे मैंने रिएक्शन करवाई इसकी H2O के साथ। अब बोलोगे सर H2O क्या हो गया? अरे भाई जब HCl एसिड है तो H2O बेस ही है, और क्या हो गया? ये तो बताया था मैंने कि वाटर एसिड का, एसिड की वाटर कैन बिहेव एज अ एसिड और वाटर ऑल्सो कैन बिहेव एज बेस। तो यहां पे जब एक एसिड है तो ये जो वाटर होगा ये एसिड तो होने से रहा, ये अब किसका रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा बेस का। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। चलिए अब वेट कीजिए रिएक्शन का। यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, डोनेट कर देगा, डोनेट कर दिया। और यहां पे साहब के पास तो पॉजिटिव आ गया और यहां क्लोरीन के पास आ गया नेगेटिव। वेरी सिंपल। तो यहां पे H क्या हो गया? HCl यहां पे डोनर का काम हो रहा है। ये H क्या होगा स्टूडेंट्स? ये H ऐड हो जाएगा किसके साथ? H2O में, और ये हो जाएगा H3O प्लस आयन। हाइड्रोनियम आयन हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। H इस बेस से कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया वन मोर प्रोटॉन। और स्टूडेंट्स अब ये बेस नहीं रहा है, अब ये आपका हो गया कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो Cl माइनस है ये यहां पे विराजेंगे अब। और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, conjugate base. So now you can write here HCl HCl से क्या बन गया स्टूडेंट्स? किसके साथ है? Cl HCl, और जो Cl है HCl क्या था? एसिड था स्टूडेंट्स। एसिड लिखा, फिर Cl माइनस क्या हो गया? ये हो गया कॉन्जुगेट बेस पेयर हो गया। और स्टूडेंट्स H2O क्या है?
H3O हाइड्रोनियम आयन है। H2O क्या था? बेस था। तो ये बेस से H3O क्या है? कॉन्जुगेटिव एसिड। तो बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। So this is the examples by which you can understand the Brunstein and Lowry concept of acids and base. Hope students, I hope that the concept you have understood. And in the upcoming video, we will see next concept. And after that, we will be continue students. So thank you. Have a nice day.